Chapter 9 Some Applications of Trigonometry. Today we will discuss all the theoretical topics regarding this chapter, how we are going to use trigonometry in the daily life, and then we will go through the examples of NCERT and we will try to understand the solution and all the basic approach, the steps that we need to take care of. So let's start. So in this chapter we will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around us. So basically हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिसमें एक सिचुएशन गिवन होगी, एक रियल लाइफ सिचुएशन गिवन होगी. वी नीड टू एनालाइज दैट सिचुएशन एंड यूज ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव लर्न इन चैप्टर 8. और उसमें से भी मेनली जो हम यूज करने वाले हैं दैट विल बी द फॉर्मूलाज दैट वी हैव यूज्ड इन एक्सरसाइज 8.1. So to understand how to use it, we need to understand few terms here. So here, look at these figures. So you can see Qutub Minar. There is a point A, E, where a man is standing, and then you can see some terms like line of sight, angle of elevation. So basically, in this figure, the line AC drawn from the eye of the student to the top of the minar is called line of sight. The student is looking at top of the minar. The angle BAC, so formed by the line of sight with the horizontal, is called angle of elevation of top of the minar from eye of the student. तो यहाँ पे आपको यही दो terms mainly सीखनी है, that is what is line of sight, what is angle of elevation. अब ये जो particular figure है, इसमें आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से सोचें, जैसा आपको आगे दिखेगा, तो कुछ इस टाइप से बोला होगा, there is a student who is looking at the top of कुतुब मीनार. तो जब ऐसा बोला जाता है तो यानी वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है और ऑब्वियसली आइज से देखेगा. सो हम उसकी आइज को कुतुब मीनार के टॉप से यानी पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. क्लियर? एंड देन अगर जिस भी लेवल पे उसकी आइज हैं वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, दैट विल बी द बेस. तो वो बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो जब भी किसी चीज को देखने के लिए थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन. Thus the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer, and the angle of elevation of the point viewed is angle formed by line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level, that is when we raise our head to look at the object. So I hope आपको यहाँ फर्स्ट टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया. दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ, जब भी किसी चीज को देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है तो अपने नॉर्मल विजन लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लेवल आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये इस नॉर्मल लेवल से कितना एंगल बना के हमें वो चीज दिख रही है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट टर्म सिमिलर टू दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो अब हम उस टर्म को समझेंगे. Now consider the situation given in this figure. The girl sitting on the balcony is looking down at a flower pot placed on a stair of the temple. In this case, the line of sight is below the horizontal level. Okay. So it is definitely not. Okay, it is given figure 8.2. So we don't have this figure over here. It is in the last chapter. So don't worry about that. Let's focus on the figure that we have right now. In this figure, we can see that there is a girl and the object, that is football, is placed somewhere on the ground. So when the girl is looking at that object, looking at the football, we know where is the line of sight. We need to join the eye to the object and we can see the line of sight. Now again, mark the horizontal level. So wherever the eyes are, we go parallel to the ground, draw the dotted line, that is the horizontal level. So the angle formed between the line of sight and horizontal level is angle of depression. So remember, जब भी कोई चीज ऊपर है तो हम ऊपर देख रहे हैं तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब कोई चीज नीचे होती है और उसे देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके,
तो दोनों में लॉजिक सेम है, आपको बस ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। Thus, the angle of depression of a point on the object being viewed is angle formed by line of sight with horizontal when point is below the horizontal level. So I hope आपके दोनों टर्म्स क्लियर हैं, बिकॉज यही मेन टर्म्स हैं इस चैप्टर के, और कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। रिमेनिंग इज द कैलकुलेशन पार्ट। सो वी कैन स्किप ऑल दिस, ये सब आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा जो यहाँ समझाया हुआ है थियोरेटिकली। सो लेट्स सी एग्जाम्पल 1। A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from foot of tower, the angle of elevation of top of tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन को, अभी तो आपको सॉल्यूशन फिगर सब दिख रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, दैट फिगर इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको फिगर कैसे बनानी होगी? It is given that there is a tower that stands vertically on the ground. That means, okay, let me do this on paint side by side with you. So जब हमें बोला गया that there is a tower standing on the ground, तो हम एक vertical line draw कर लेते हैं, जो हो गया हमारे लिए एक tower. Okay. Then it says from a point on the ground which is 15 meter away from foot of the tower, the angle of elevation is 60 degree. So there is a point somewhere away from the tower which is 15 meter away. So let this distance be 15 meter. So angle of elevation, that means the guy is looking from here to the top and form angle 60 degree. So we have this length 15, we have this angle as 60 degree. Now the question has asked us to find the height of the tower. As this vertical line is the tower, so we need to find height. So if we can let the height to be h. So this is the figure. आपको फिगर इस तरीके से बनानी है। यहाँ पे आपको ये जो टॉवर दिख रहा है वो सब ड्राइंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये ब्लू लाइंस दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल इतना ही फॉर्म करना है। सो इट डजेंट मैटर आप 15 राइट साइड में लें या लेफ्ट साइड में लें, टॉवर के से बस 15 मीटर दूर दिखाना है, वो आपकी चॉइस है कि ग्राउंड के आप लेफ्ट साइड में जाते हैं या राइट साइड में। तो ये आपकी फिगर बनेगी। एंड नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। यू कैन स्किप द पैराग्राफ पार्ट, ये सब आपको बताने की ज़रूरत इतना नहीं है कि ए बी क्या है, बी सी क्या है एंड ऑल। ओके, देन अब आपको आप सॉल्यूशन पर अगर देखें तो इन्होंने tan 60 यूज़ किया। नाउ व्हाई tan 60? अगेन इफ यू लुक एट द फिगर, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? दिस इज आवर थीटा ओवर हियर। अगर मैं इनको नाम दूं, ओके, लेट द ट्रायंगल बी ए बी सी। So we have angle C 60 degree. So based on that, अगर हम उस लॉजिक पे जाने जो 8th चैप्टर में सीखा था, थीटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक साइड पता है which is 15. So as per theta that is the base. और जो साइड हमें फाइंड करनी है that is height of the tower, that is AB, वो है परपेंडिकुलर। तो क्योंकि हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो वाले यूज करेंगे जिनमें ये दोनों आती है। That's why we are using tan 60 degree. So tan 60 equal to P by B becomes AB by BC. And we know tan 60 degree is √3. And AB, यहाँ पे AB को AB भी रहने दे सकते हैं, and अगर आप हाइट को h लेट करते हैं तो आप यहाँ पे h भी लिख सकते हैं। So h and the base BC is 15. So we get answer as 15√3. Simple. So solution is simple. जो आपका मेन इसमें डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फिगर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको फिगर खुद बनानी होगी, वो ऐसे फिगर देगा नहीं। लेट्स सी एग्जांपल 2। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at angle 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of pole should she place the foot of the ladder? You may take √3 equal 1.73. Okay, so we have an electric pole जिसकी total height 5 मीटर है,
इलेक्ट्रिशियन नीड्स टू रीच टू अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द पोल। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे पोल है, बी पॉइंट जो एडी है वो दैट इज द पोल, बी पॉइंट तक पहुँचना है। और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वो पॉइंट 1.3 मीटर और बिलो है टॉप पॉइंट से, यानी ए बी की जो लेंथ है दैट इज 1.3। तो हमें कंप्लीट लेंथ ए डी पता है, हमें ए बी पता है, और हमें ये पता है कि जो लैडर प्लेस्ड है वो 60 डिग्री पे प्लेस्ड है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर। एक तो लैडर की लेंथ फाइंड करनी है, as you can see here what should be the length of the ladder, and the next thing that we need to find is how far from the foot of the pole should ladder be placed। यानी हमें as per this figure एक तो BC फाइंड करनी है that is length of ladder, and we need to find DC as well कि लैडर और पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है ग्राउंड पे। तो ये फिगर आप जब बनाएंगे तो अगेन लेट्स ट्राई ओवर हियर। सो यू हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली, जिसमें से आपका ये जो हाइपोटेन्यूस है दिस इज एक्चुअली द लैडर, राइट, जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो यू कैन लेट इट टू बी एक्स। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड इज कि ये पोल और लैडर के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी वाई। अब अगर हमें अपने फिगर पे जाएं एक्चुअली में, तो जो पोल है वो थोड़ा और ऊपर तक है बिकॉज लैडर टॉप तक नहीं है, एंड वी नो दैट दिस ए बी is 1.3 and complete length of the pole is 5। तो जो हमारी required length है which is this portion, the height of right angle triangle, that becomes 5 minus 1.3 that is 3.7, और हमारा थीटा 60 डिग्री है, ये भी हमें पता है। सो एज पर थीटा अब हम देखें तो क्या गिवन है और क्या मिसिंग। So as per theta, we know the perpendicular. We need to find hypotenuse, which will be the length of ladder, and we also need to find the base, which will be the distance of ladder from the pole. तो अगर हम पहले hypotenuse find करना चाहते हैं, that is the length of ladder. So we need to use that trigonometric ratio, which include perpendicular because we have perpendicular and hypotenuse. So P and H किस में आते हैं? P and H come in sin theta. Sin theta equal P by H. So let's see the solution book में कैसे किया है. Yeah. So they have used sin theta, which is sin 60 BD by BC, and by substituting the value of BD, that is 3.7, and sin 60 root 3 by 2, we get BC equal 3.7 into 2 by root 3। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है आप रूट 3 की वैल्यू पुट करें, बट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट्स वाई आप रूट 3 की वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको नहीं बोला जाएगा रूट 3 की वैल्यू गिवन, तो आपको रूट में ही छोड़ना है क्वेश्चन। बस हाँ इस चीज़ का ध्यान रखें रूट डिनोमिनेटर में ना हो, अगर रूट डिनोमिनेटर में हो तो उसे रैशनलाइज कर दें। सो इन जनरल द आंसर इज BC इक्वल 7.4 बाई रूट 3, जिसको हम फिर फर्दर रैशनलाइज कर लेंगे एंड रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे। सो लेंथ ऑफ लैडर इज 4.28। देन इफ वी कम टू द क्वेश्चन अगेन, द फिगर अगेन, नाउ वी हैव x विद us, वी नीड टू फाइंड y। सो P और B परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो P और B या तो tan थीटा में आता है या cot थीटा में। सो यू कैन यूज tan 60 डिग्री और यू कैन यूज cot 60 डिग्री। क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने कॉट यूज किया है, बट जनरली हम सारे क्वेश्चन साइन, कॉस और टैन से ही कर सकते हैं। तो कॉसेक, सेक और कॉट में मैं तो कहूँगा कि मत ही जाओ तो बेटर है। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन यूजिंग tan 60 डिग्री विच विल बी P by B, एंड देन यू विल गेट द सेम आंसर DC इक्वल 2.14 मीटर अप्रॉक्सीमेट। Example 3. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of top of chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? Okay, so we can see in the figure, which is again not the part of the question. ये फिगर इन्होंने आपको सॉल्यूशन में बना के दी है। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिगर आपको खुद बनानी होगी। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, जब आपको खुद फिगर बनानी है तो आपको प्रॉपर चिमनीज या बिल्डिंग्स, हिल्स ये सब नहीं बनानी होती, आपको सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके,
सो इट इज गिवन एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट गिवन है। तो जब आपको पर्टिकुलरली किसी ऑब्जर्वर की हाइट गिवन हो तो आपको वो हाइट फिगर में शो करनी होती है, जो इस फिगर में आपको सी डी शो कर रहा है। सो सी डी इज द ऑब्जर्वर। तो सी डी की लेंथ हो गई 1.5, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सो सी डी से हम हॉरिजॉन्टली 28.5 मीटर दूर एक चिमनी बनाएंगे, क्योंकि बोला है चिमनी और ऑब्जर्वर के बीच में 28.5 मीटर का डिस्टेंस है, जो एज पर दिस फिगर डिस्टेंस हुआ BC या फिर DE। BC और DE दोनों हुए 28.5, और D पॉइंट से यानी ऑब्जर्वर की आइज से चिमनी के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्रीज। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द चिमनी। हमारा सारा फोकस शिफ्ट हमेशा हो जाना चाहिए टुवर्ड्स राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज ट्रायंगल ABE। अगर ये आप बीच में लाइन को देख सकें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें थीटा पता है 45 डिग्री, वी नो द बेस that is 28.5, and we need to find height of chimney. We know the chimney is AB, not only AE, but right angle triangle से हम AE find कर सकते हैं। and अगर आप और ध्यान से सोचें तो CD और BE ये इक्वल ही हैं, क्योंकि ये जो हाइट है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जर्वर। तो BE ऑलरेडी हमें पता है कितना है 1.5। सो अगर हम AE फाइंड कर लें, सो फाइनली जो हमारी हाइट ऑफ चिमनी है AB दैट बिकम्स AE प्लस BE। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है दैट AB इज इक्वल टू AE प्लस BE, जिनमें से BE हमें पता है 1.5। ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड AE which is in this right angle triangle. So we know theta, we know base, we need to find the perpendicular. So what should we do? We should use tan theta, because tan theta is P by B. We know the base, we know the theta, and tan 45 is 1, so using that you will get AE equal 28.5. Let's see the solution. So here tan 45 equal to AE by DE, so 1 equal to AE by 28.5, which gives us AE also 28.5. So finally the height of chimney becomes AB, which is 28.5 plus 1.5, that is 30 meters. Now based on the examples that we have discussed, I would like you to try first 5 questions of exercise. You can see the questions, question 1, 2, 3, then there is question 5 and question 6. ये 6 क्वेश्चंस, आई मीन 5 क्वेश्चंस, आप अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि कैसे सोचना है, कैसे फिगर बनानी है, देन आप कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको थोड़ा डाउट भी हो तो भी ट्राई ज़रूर करें, ताकि जब बाद में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं तो आपको ये पता चले कि आप एक्चुअली में कितना सही थे, और अगर कोई चीज़ नहीं आई थी तो क्यों नहीं आई थी। तो इनको ट्राई ज़रूर करें। इट विल हार्डली टेक 20-30 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।